చేసినప్పుడు అసలు బిజినెస్ గురించి కూడా ఐడియా లేదు. కానీ ఈ ఒక్క ప్లాన్ విన్న తర్వాత, ఒక పెద్ద మీటింగ్ అటెండ్ అయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఇంత ముందని అర్థమైంది. ఎందుకంటే నేను ఒక ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నా, కానీ పొద్దున లేస్తే నైట్ వరకు నేను పొలం పనులకే పరిమితమై ఉండేదాన్ని. ఈ కాలం వచ్చిందంటే మేము చేను దగ్గరనే విత్తనాలు వేసేటోళ్ళం. కానీ ఈ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవడం వల్ల మా లైఫ్ చాలా చేంజ్ అయింది. ఈ బిజినెస్ నుంచి మేము ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కార్ తీసుకోవడం జరిగింది, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలకి ఒక 30,000 ఫీజు కట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది పడి గురుకుల పాఠశాలలో మా పిల్లలను చదివించినాం. కానీ ఈరోజు వెస్టీజ్ వినిక్టివ్ అప్లయన్స్ యొక్క కృతజ్ఞత వల్ల మేము ఈరోజు మా పిల్లలను లక్షలలో ఇన్కమ్ పెట్టి డబ్బులు కట్టి బయట ఈరోజు ఇయర్లీ మా పెద్ద బాబు యొక్క ఫీజు 3 lakhs, మా చిన్న బాబు యొక్క ఫీజు 1.5 lakhs ఉంది. ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. నేను ఒక చిన్న ఆలోచన చేసి ఒక చిన్న నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల, దీన్ని కన్సిస్టెన్సీగా వర్క్ చేయడం వల్ల మా డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయినాయి. నేను ఇట్లాంటి లైఫ్ వస్తుందని కూడా నేను అనుకోలేదు, ఎప్పుడు కూడా అట్లా ఆలోచన చేయలేదు. ఒక ₹1,00,000 కారు సెకండ్ హ్యాండ్ ఉంటే చాలు అని అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏసీ కార్లలో తిరగడం జరుగుతుంది. ఒక ఎడ్ల బండి నుండి మేము ఈరోజు మా సార్ మేము కలిసి థాయిలాండ్, ఖత్తర్, దుబాయ్ 3 దేశాలు కూడా తిరిగి రావడం జరిగింది. ఓపిక, కోరిక, తీరిక, ఈరోజు ఇవి 3 ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. డైలీ జూమ్ మీటింగ్, ఫిజికల్ మీటింగ్, ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు 100% మీరు కూడా సక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మహిళకు ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ మనం చదువుకున్న చదువుల వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కావచ్చు, మనం అక్కడే ఆగిపోతున్నాం. కానీ ఈ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటే మనం కన్సిస్టెన్సీగా అప్లై చేయి పట్టుకొని ఒక 2 to 5 years జర్నీ చేస్తే మన ఇన్కమ్ లక్షలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఒక సెలబ్రిటీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆల్ అప్లయన్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. మేడంకి ఒక ముందు ఇచ్చేది ఉంటే లేట్ అయింది. Next, Kulkarni sir, please come to the stage. అమ్మాయి అని చెప్పలేదు, అబ్బాయి కదా. मध्याह्न पूटा दोपहर के टाइम पे सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब मैंने प्लान देखा था, बिजनेस शुरू किया है, चरण साहब मुझे बिजनेस पे लेके आए। वो टाइम में मुझे नहीं पता था कि शाल में डालेंगे, भोगे भी देंगे। पैसे आते बोल के बोले थे, ये तो बोनस से मिल रहा है। ठीक है, ये बिजनेस ये अनोखा है, जो सोच के आते हैं उसके अलावा बहुत कुछ मिलता है। हमारा हाथ ही नहीं, आपके साथ ऐसा हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। 1 घंटे से सेशन चल रहा है। श्रीनिवास जी का आपने प्लान सुना, बिजनेस क्या है, इससे समझ में आया ना? वैसे पहले था, मेरा नाम सत्यनारायण कुलकर्णी है। मैं एक बेसिकली इंजीनियर हूँ। अब पार्ट टाइम में बिजनेस इंडस्ट्री में आया। जब हमने प्लान देखा, बिजनेस पर समझा, जब चरण से जो समझा रहे थे, वो टाइम में इतने लोग नहीं थे, सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मैं और दूसरे चरण सर। अब जब बोर्ड में लिख के दिखाया गया ना, सब कुछ दिखाया उन्होंने,
घर मिलेगा, कार मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है, कभी काम की चिंता नहीं होगी, टेंशन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं, आप जॉब से फ्री हो सकते हैं, मन मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। ये सब अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना लग रहा है? मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन करने के लिए विश्वास नहीं हो रहा, करने के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा होता नहीं, ठीक है, क्योंकि एज इंजीनियर ने 10-12 साल मैंने काम किया था, मुझे क्या आ रहा था मुझे मालूम था, लेकिन कहीं भी होप नहीं मिल रहा था कि सब हो सकता है। ठीक, एक तो सवाल करूंगा आपसे, जवाब देंगे? यस। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, कितने लोग कुछ काम किए बगैर बैठ के खा रहे हैं? सबको काम करना पड़ेगा, कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ के खा रहे, मजे कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ये नहीं। इसका मतलब है सब लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? सभी लोग काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? किसी को 2 साल हुआ, किसी को 4 साल हुआ, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल हुआ, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, राइट? अब मुझे ये बताओ, काम क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा तो पैसा है और घर चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, बीवी बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, ठीक है, और बहुत सारा पैसे कमाना, राइट? इसीलिए काम में शुरू किया ना, काम कर रहे हैं ना। जब आप फ्री में बैठ के नहीं खा रहे, इतना मेहनत कर रहे, पैसा कमा रहे, इतने साल गुजर गए, आप मुझे सोच समझ के जवाब दो, जो पैसे कमा रहे, कितने लोगों को पैसे बस हो रहे या बस कर ले रहे, या सफिशिएंट नहीं है, एडजस्ट कर ले रहे? क्या कर रहे? आप तो गलत नहीं कर रहे, काम तो कर रहे, उसके बावजूद पैसा वहां पर जितना चाहता उतना नहीं, क्या करना पड़ रहा है? उसको एडजस्ट करते जाना पड़ रहा है। इज इट राइट? यस। अभी देखो, जब आपने काम शुरू किया था वो टाइम में कुछ पैसा बना था, उसके बाद 2-3-4 साल के बाद में पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा? यस। आपका इनकम बढ़ा नहीं बढ़ा? डेफिनेटली बढ़ा। जब शुरू किया था वही हालत था, काम करने के बाद जब 5 साल के बाद पैसा बढ़ा, तब भी हालत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सोच के देखो, ठीक है? अच्छा, आप जो काम कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, और एक 4-5 साल में, 2-3 साल में डेफिनेटली पैसा बढ़ के आएगा। जो 20 कमा रहा है उसका 25 आएगा, 25 कमा 30 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, वो 3 साल के बाद में भी, 5 साल के बाद में जो पैसा बनेगा, तब भी आपको क्या पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब भी जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आज तक जो काम करते आए, आगे भी वही काम कर रहे हैं। आज तक जो मिला, कल भी वही मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? पैसे में है या काम में है? पैसा प्रॉब्लम कहाँ पर है? पैसे में है या काम में है? काम में है। अभी मैं मेट्रो से आया, मैंने चला मियाँपुर में, उतरा यहाँ पर न्यू मार्केट मलकपेट पे उतरा, ठीक है? अगर ये ट्रेन में बैठ के मैं सोचता हूँ मुझे जाना है नागौर को, जा सकता है क्या? अगर डेस्टिनेशन चेंज करना है तो मुझे ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं, आपको पता है वो कहाँ लेके जाता है, अब और वहाँ पे ट्रेन में बैठ के, अभी किसी ने बात कर रहा, भगवान जी को किसी ने बात कर रहे थे मल्ले जी से, तो हर एक बात को ये भगवान को नमस्कार करने में ये चाहिए वो चाहिए। अरे गलत ट्रेन में बैठ के भगवान भी क्या करेगा? उसकी क्या गलती है? वो ट्रेन फिक्स है, यहाँ निकला यहाँ पहुंचेगा, तुम कितना भी भजन करो, कुछ भी करो, वो डेफिनेटली मलकपेट ही जाएगा, लेकिन वो नागौर नहीं जाएगा, ठीक है? जाने अनजाने में हमारा काम भी वैसे होगा, हमारा काम भी वैसे होता है। अगर हमको डेस्टिनेशन चेंज करना है तो ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, सही है नहीं? देखो, जब हम काम की बात कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं, तो वहां पर काम, कोई भी काम गलत नहीं है, कोई भी काम गलत नहीं है। वहां पर देखो वहां पर क्या मिल सकता है बोलने का, ठीक है? एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ आपको मैं, आज घर जाने के बाद वो टेस्ट को आप पूरा करो, अभी बैठे बैठे कर सकते हैं आप। यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये दुनिया में आप जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं क्या? नहीं। ये काम इससे पहले कोई ना कोई किया होगा ना? किया ही नहीं किए? किया है ना? जो आदमी आप जो काम कर रहे इससे पहले किए सो है, वैसे काम बहुत सारे लोग करके मर गए सो,
सही है नहीं? Yes. जो काम 8 साल 10 साल 20 साल काम करके गुजर गए, रिटायरमेंट लिए, आज जो काम कर नहीं पा रहे, उनकी जिंदगी में उतना मेहनत करने के बाद जो एंड रिजल्ट रहा, जो काम बंद करने में मरने के टाइम में जो रिजल्ट रहा, ठीक है, उसको देखेगा वो बंदा उतना साल काम करने के बाद उन्होंने क्या पाया, ठीक है। अगर वही काम आप कर रहे, जैसा मलकपेट से यहाँ मियाँपुर से यहाँ ट्रेन आ रहा था, लेकिन आपका भी जर्नी उसी के आसपास में जाएगा, बात समझ में आ रही? ऐसा कुछ अलग होने वाला नहीं है, ठीक है। उसकी जिंदगी में जो है आपकी जिंदगी में वो रहेगा, ठीक है। वो बात टेबल है, शायद वो टाइम में जब काम बन के उसके पास 10,000 रोशन कमाया होगा, आपका 1 लाख आता होगा, वो टाइम का 10,000 आपका 1 लाख बराबर ही रहेगा, बात समझ में आ रही? दिखने में फिगर मोटा दिख रहा है। अभी देखो मैं जो बोल रहा था, 5 साल के बाद में 25 से 30,000 इनकम बढ़ जाएगा, तब तक दूध का रेट डबल हो जाएगा। शायद 5 साल की जरूरत नहीं है, अभी पेट्रोल का रेट सब बढ़ जाएगा, 5-6 महीने में हो जाएगा। लोग बोल रहे 1.5 से पेट्रोल हो जाएगा, बल्कि 1.5 से हो जाएगा, 150 पेट्रोल सब रेट भागेंगे। सही नहीं? आपका सब्जी का रेट, खान पीन का रेट, दूध का रेट, चाय का रेट, सिलेंडर रेट बढ़ गए सो है, ठीक है, घर का रेंट, सब कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आपका बढ़ा होगा 5,000, खर्चा बढ़ गया 10,000। बड़ा फिगर लेने के बाद भी टेंशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि काम ही वैसा है। आप जो काम कर रहे हैं पर एंड रिजल्ट देखेगा, लोग कहां तक पहुंचे, वो आप भी कम ज्यादा वहीं पहुंचेंगे, आप भी कम ज्यादा वहीं पहुंचेंगे। उसके हट के पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिएगा, बहुत लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जॉब कर लेते हैं, ठीक है। अगर बड़ा बनना है, ये सारे सपने दिखाए उसे पूरा करना है, जब ग्रुप में बहुत लोगों को फोटो दिखाए वैसे जिंदगी जीना है, तो क्या नौकरी में छोटे काम में पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ नया काम, अच्छा काम देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जो किसने भी बुलाया, उन्होंने इस काम को देखा, बिजनेस के काम को, उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड रिजल्ट उन्होंने बुक में बहुत सारे लोगों की जिंदगी दिखाया, उन्होंने, आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। शुरू करके 5-10 साल में कहाँ गए, शायद श्रीनिवास जी बताए होंगे, परसों हमारा बिजनेस का एनिवर्सरी हुआ 22 साल का, वहाँ पर एक बंदे का इनकम था 96 से 92 करोड़ इस 10-12 साल का। मजे की बात बताऊं, वो जो बंदा वो इनकम लिया ना, 100 करोड़ के आसपास जो इनकम लिया ना, वो बंदा बिजनेस के पास 10,000 का नौकरी पूछने को गया था। इसलिए गया था, नौकरी पूछने गया था, लेकिन कंपनी के मालिक उसको पैसा देते, उन्होंने उनको बिजनेस का धंधा सौंप पाया। तो आज इस काम करके ये 10-15 साल के अंदर उन्होंने 100 करोड़ के आसपास में पैसा कमाया। काम में दम है या नहीं है? दम है या नहीं है? हमारे जो चीफ मिनिस्टर है एसपी भारी जी, शायद इनके बारे में बताया होगा, उन्होंने काम शुरू किया 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो। उनका इनकम रहा इस जर्नी में तकरीबन 34 करोड़ का। 34 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 34 करोड़ की बात कर रहा हूं। अब उससे मजे की बात, कंपनी का टर्नओवर कितना है? आज 3,000 करोड़ का टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर कितना है? 3,000 करोड़। सीनियर्स ने बताया भी होगा आपको बात करने के टाइम में। अभी कंपनी ने टारगेट लिया, कंपनी ने टारगेट लिया 2030 तक हम बनेंगे $1 बिलियन कंपनी, यानी तकरीबन 10,000 करोड़ कंपनी बनने वाली है। अभी थोड़ा पर एंटी ओपन सोच समझने की बात है, जब कंपनी 3,000 करोड़ ही टर्नओवर किया तो लोग 100 करोड़ कमा रहे, 30 करोड़ कमा रहे। जब कंपनी 10,000 करोड़ पहुंचेंगे, लोगों की कमाने की हालत क्या होगी, ठीक है। और उसमें आप है तब की क्या हाल होगी समझ सकते हैं आप, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस के साथ में आप इसको समझना है, सीखना है, करना है, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं है, एक छड़ी लेके आए, ऐसा घुमाया गया, आप करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 काम करने होंगे। कितने काम करने होंगे? 3 काम। पहला काम है इस काम को सीखना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा। सीखने के उसी काम को करना होगा। पहले क्या करना होगा? सीखना। दूसरा काम क्या करना है? करना होगा। तो सीख के जो काम करते हैं उसी को 10 लोगों को सिखाना। जब यहाँ से बाहर जाएंगे
जब लोगों से बात करेंगे आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे कि वेस्टेज हमें पता है, वही वेस्टेज ना, थर्मोकोल डालते तेल डालते क्या बदल जाता, वही वेस्टेज ना, बोलते नहीं बोलते, मुझे सब मालूम है, मैं देखा हूँ, हमारा चाचा क्या था, भतीजा क्या था, वो सब लोग फेल हो गए। आप भी बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आप भी क्या हो जाते, फेल हो जाते। क्या उन्होंने गलत कहा? बिल्कुल नहीं कहा, 100% सही कहा उन्होंने। उनका जो एक्सपीरियंस है वही उन्होंने कहा। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुछ लोग सक्सेस हो रहे और कुछ लोग फेल हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि मैंने जो 3 काम बताया ना, काम को सीखना होगा, करना होगा, सिखाना होगा। कभी आपने नंबर लाख देखा? नंबर का लाख होता है ना, उसमें 3 नंबर मिलाने के बाद जो लाख खुलता है, ठीक है? ये भी 3 नंबर है, ये 3 लाख है, ये 3 नंबर सेट किए तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं। किसी ने काम ही नहीं सीखा वो फेल हो गया, किसने काम सीखा किया नहीं वो फेल हो गया, किसने काम सीखा और किया तो वो सीखा नहीं वो भी फेल होगा। आपको बाहर मिलने वाले पूरे वही होंगे। बात समझ में आ गई? अब जो बुक में देखिए अभी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, वो सब लोग 3 लाख को मैच किया उसीलिए सक्सेस हो रहे। जब उनको काम आता है तो आपको भी काम सिखाया जाएगा। तो सिखाने के लिए तैयार है, क्या सीखने के लिए तैयार है? जो सीखने के लिए तैयार है वही आगे बढ़ेगा, ठीक है? मैं तो मानता हूँ इस धरती का सबसे आसान, सबसे इजी बिजनेस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लास्ट एक बात बोल के मेरा बात क्लोज करता हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम वो बोलते हैं ना, यहाँ पर आपका एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है और क्या एज की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आगे बढ़ सकता है। ऐसे दुनिया में 2 ही फील्ड है। कितने फील्ड है? 2 ही फील्ड है। ये 2 फील्ड में कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है। क्या जानना चाहेंगे आप? यस। अभी देखो, मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। यस। बन गए नहीं बन गए? जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, जब ठहरे थे, उनका क्वालिफिकेशन देख के कोई वोट नहीं डाले, तो क्या करते थे देख के कोई वोट नहीं डाले, ठीक है? यानी इसका मतलब है पॉलिटिक्स में कोई भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उसी तरह दूसरा मौका है वेस्टेज। लेकिन दोनों के बीच में इतना फर्क है, क्योंकि एक देश को एक ही आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक स्टेट को एक ही मुख्यमंत्री बन सकता है, एक क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही एमएलए बन सकता है, लेकिन वेस्टेज में एक ही जगह हजारों बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत होशियार है, ठीक है? होशियार है ना? कितने लोग होशियार है? जो हाथ तक वही होशियार है, तो पीछे देखो कौन कहाँ बैठा रहे, देखेंगे बहुत कम लोग आप बैठा रहे। यही चाहिए कि आपने ऊपर पहले विश्वास चाहिए। सक्सेस का पहला राज क्या है? खुद के ऊपर विश्वास करना, ठीक है? मौके तो बहुत आएंगे, ठीक है? मौके लेने में छुट्टी में वही फर्क है, जो विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। तो आप मुझे समझिए, अभी भी समझ रहा हूँ मैं, आप सब लोग होशियार है, ठीक है? सही निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम वहाँ बैठ के सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने जा रहा हूँ। बहुत दूर से हमारे लिए आए कुलकर्णी सर भी, और सर भी जो है बहुत सक्सेसफुल हुए। एक लेक्चरर, प्रोफेसर और मैडम जो है आईटी सॉफ्टवेयर थे, आज दोनों भी जॉब से फ्री हो चुके हैं। तो उनके मुंह से अपन सुनेंगे उनका सक्सेस का राज। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, चरण सर हैं, भार्गव रॉय।
सारे लोगों को क्या लगता है कि कुछ भी हम कुछ चीज़ करते हैं या कुछ हम जॉब करते हैं या शॉप खोलते हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं तो पहला चीज़ क्या चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। सभी को रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं वेस्टिज में काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि खासकर मैं लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि वो कहते हैं मैं नहीं कर सकती, ये मैं बहुत बार सुनी। तो क्या नहीं कर सकती, ऐसा लगता है कि मुझे क्या नहीं कर सकती। तो वेस्टिज में पहले मेरे अप्लाई ने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। मैं समझी अगर 100% प्रोडक्ट यूज़ करने से मैं बिजनेस कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे घर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आए थे, जैसे पहले सप्लीमेंट्स हैं तो घर में सभी के हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स लाए, फिर घर में तेल है पकाने के लिए, फिर साबुन है, टूथपेस्ट है और हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू है। तो ये सब प्रोडक्ट्स लाने के बाद मुझे लगा कि इसमें सीखने का क्या है, यानी इसके बारे में जानना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके बारे में हमको जानना है। तो जब हमने वेस्टिज के कुछ ट्रेनिंग्स लिए, जैसे सप्लीमेंट का ट्रेनिंग होगा या स्किन केयर का ट्रेनिंग होगा, तो थोड़े थोड़े ट्रेनिंग्स हम धीरे धीरे लेते गए तो समझ में आया कि ये प्रोडक्ट्स पहले जो यूज़ कर रहे हैं पहले उनके समझ में आना चाहिए कि कौन से चीज़ के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो उसके बाद समझ में आया कि ये बिज़नेस में अगर मैं 100% प्रोडक्ट यूज़ करूँगी या तो स्किन केयर का होगा या कुछ भी होगा, किसी से मैं शेयर कर सकती हूँ। तो जैसे बिज़नेस में प्लान में बताया कि आप रेफरल बिजनेस है, आपको किसी को रेफर करने से आपको इनकम आती है। तो मैं पहले 100% प्रोडक्ट यूज़ के पहले मैं बताती हूँ कि मैं किसी को प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं किसी को मैं यूज़ ही नहीं। तो किसी ने पूछा है कि आपके पास आप कह रहे हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट्स है, तो थायराइड के लिए है क्या? तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं फिर बताती हूँ यार कि मुझे पता नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ। तो मैं सोचने लगी कि क्या सच में थायराइड के लिए कुछ है। तो देखिए यहाँ पे गैप आ जाता है। इसीलिए हम जब यूज़ करते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो हमको कॉन्फिडेंटली हम बता सकते हैं कि यस हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं। तो मैंने पहले शुरुआत में वही किया कि मैं हर एक प्रोडक्ट को हर महीना हमने थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स लेके आए, जैसे अभी अपना 150 की कंसिस्टेंसी में या जो भी हम वो प्रोडक्ट्स लेके आए, यूज़ करते गए, अच्छा लगा तो शेयर करते गए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पहले जिसको भी डाउट आता है कि बिज़नेस में क्या करना चाहिए, आप 100% प्रोडक्ट यूज़र बनिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए और जब नॉलेज लेंगे किसी को शेयर करने लगेंगे तो आपका टीम भी बढ़ेगा और आपका पीए बढ़ेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। थैंक यू। थैंक यू भार्गवी। तो एक बार भार्गवी के लिए जिंदा। तो आज पहली बार मुझे भार्गवी को लाने का डबल फायदा हुआ, 2 रुपये दिए। पहले एक में हमको संभालना पड़ता था, अभी 2 फायदा हो गया। तो सब लोग अपना अपने हस्बैंड वाइफ साथ में आएंगे तो ये भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कितने लोग आज पहली बार आए? కొత్త వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑलरेडी बिजनेस को स्टार्ट कर चुके ज्वाइन, अभी कितने लोग हैं? ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो आज पहली बार आए उनके लिए एक बार वेलकम क्लैप्स हम कर लें। तो देखिए हम यहाँ पे आज का मिलने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। మనం ఏం చేసుకోవాలి? अपग्रेड చేసుకోవాలి। अपडेट చేసుకోవాలి, రెండు కూడా ऑलमोस्ट सिमिलर మాట। तो पहले के लोग है ना बैलगाड़ी में घूमते थे, बैलगाड़ी ఎద్దుల బండి, गुर्रम ఎద్దుల బండి मतलब घोड़ा था और बैलगाड़ी था। तो उसमें उनको पूरा ज़िंदगी अच्छा चलता था। उसके बाद साइकिल आया, हमारे दादा साइकिल चलाते थे, वो पूरा रोड पे साइकिल ही ज़्यादा दिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? स्कूटर आया, 2 व्हीलर आया कि नहीं आया? yes. फिर 4 व्हीलर आ गया। yes. अभी हम लोग 2 व्हीलर भी सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? 4 व्हीलर भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? yes. ठीक है। नहीं मैं सिर्फ साइकिल पे ही सीख कर और साइकिल पे ही काम करूँगा तो चलेगा क्या? नहीं, थोड़ा पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? yes. रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम भी अगर वेस्टिज बिजनेस में है
तो क्या हम अभी भी साइकिल पे घूम रहे हैं या अभी भी हम अपने आप को अपडेट करके 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आना चाह रहे हैं या स्पीड से आगे जाना चाह रहे हैं? तो अपग्रेड करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. तो ये चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करने के लिए तैयार है? Yes. तो नए लोगों के लिए तो बहुत कुछ बातें पता चल चुकी है కొత్త వాళ్ళ గురించి. ఓకే, బిజినెస్ ది బెస్ట్ బిజినెస్ ఉన్నది, ఆల్రెడీ సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళ యొక్క మీరు फोटोज वीडियोस అన్నీ మీరు చూసుకున్నారు. ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया सक्सेसफुल लोगों का. अभी हमको अगर बिजनेस में आगे जाना है तो अपने आप को थोड़ा और आगे सीखने में भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नया काम करेंगे, कुछ अच्छा और आगे बढ़ने वाला काम करेंगे तो हमारा इनकम भी आगे बढ़ेगा, हमारा टीम साइज भी आगे बढ़ेगा और हमारा, ठीक है, जो भी आप जो सपने लिख रहे हैं वो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं. तो जो भी लोग बिजनेस में अभी जुड़े हुए हैं, किसको लगता है कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, నా కలలు నిజం చేసుకోవాలంటే నేనే పని చేయాలి? हेलो, सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes. ये पहला अपग्रेडेशन है. सबसे पहला अपग्रेड क्या है पता है? कि ये बिजनेस में सपनों को पूरा करने के लिए किसको काम करना पड़ेगा? मुझे काम करना पड़ेगा. तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? आई एम रेस्पॉन्सिबल. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बोलेंगे कि अपलाइन आए नहीं, इसके लिए मैं कर नहीं पाया, लोग सुन रहे नहीं यानी डाउनलाइन जाते नहीं है, काम करते नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाया. बाकी फिर आजू बाजू वाले बहुत सारे रीज़न सब लोग बता देते हैं. तो पहला अपग्रेडेशन ये है कि मेरे को कुछ अभी करना है, मैं डिसाइड कर लिया. डिसाइड कर लिए? Yes. डिसाइड అయినారా? Yes. डिसीजन తీసుకున్నారా? Yes. तो सबसे पहला हमको क्या इसमें समझना है कि ये बिजनेस के बारे में हमको थोड़ा बिजनेस का नेचर समझना है. ये बिजनेस का नेचर क्या है? व्हाट इज दिस बिजनेस? ठीक है, अभी अगर आपको होटल इंडस्ट्री बोला गया तो आपको क्या समझ में आएगा? एक होटल रहता, रोज खाना बनाते और ग्राहक को क्या करते? परोसते जाते, वो खाते जाते, पैसे आते जाते, बराबर? कस्टमर आएगा, खाएगा. ये क्या हो गया? होटल इंडस्ट्री, टिफिन सेंटर हो गया. समझ में आ गया ना? Yes. ठीक है. नहीं सर, ऐसा है ना, मैं खाना नहीं बनाऊंगा लेकिन होटल इंडस्ट्री चलना चाहिए, तो क्या परोसोगे? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता. तो वो इंडस्ट्री समझ में आ गया. ठीक है, अभी समझ लो कपड़े की दुकान का है, ठीक है, क्लॉथ. ओके, अब वो दुकान का पूरा अगर बिजनेस अगर आपके दिमाग में आएगा तो क्या समझ में आया? एक क्लॉथ का शॉप होना चाहिए, वहाँ पे हम पूरा स्टॉक रखेंगे, कस्टमर आएगा उसको बताएंगे शर्ट पैंट साड़ी जो बताना है और वो खरीदेगा, हमको पैसा और कस्टमर आएगा और ठीक है सेल होगा, पैसा आएगा. समझ में आ रहा है ना? Yes. तो अलग अलग बिजनेस का नेचर है. तो वेस्टीज बिजनेस का ये जो डायरेक्ट सेलिंग का नेचर है इसको भी एक बार समझ लें. ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग का नेचर क्या है? थोड़ा अलग है. डायरेक्ट सेलिंग का नेचर क्या होता है? ये ट्रेडिशनल मार्केट से ये थोड़ा अलग है. ठीक है, ये भी काम वो कुछ नहीं अच्छा है. ट्रेडिशनल मार्केट से भी ये बिल्कुल अलग होता है. ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आप शॉप लगाते हो, कस्टमर आपके पास आता है और आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हो, करते कि नहीं करते? अभी वेस्टीज का काम थोड़ा अलग है. ठीक है, वेस्टीज के काम में इन्वेस्टमेंट नहीं है. सबसे पहला बात क्या है? नो इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट नहीं है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? आपको दुकान लगाना भी नहीं है. Yes. आप दुकान नहीं लगाएंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर आएगा नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे? हो गया कि नहीं होगा? तो ये जो नेचर है इसको हम बोलते हैं रेफरल बेनिफिट नेचर. आज सारा वर्ल्ड, सारे बड़े बड़े कंपनीज, पूरा इंडस्ट्रीज इसके बेस पे चल रहा है. ठीक है, अगर आप एयरटेल का आप ऐप डाउनलोड करो और उसमें एक आप फ़ोन का रिचार्ज करो, वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा. ठीक है, आपके फ़ोन के बाद आपके फ्रेंड का रिचार्ज करो, आपको
50 रुपीज़ का इंटरनेट क्या मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। जियो का एक इंटरनेट कनेक्शन ले लो, जियो वाला बोलेगा आप अपने दोस्त को भी इंटरनेट दिला दो तो आपको 1 मंथ का इंटरनेट क्या हो गया, फ्री मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेफरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेफरल। तो ये रेफरल देना हमको सीखना पड़ेगा, रेफरल बताना हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर एयरटेल रेफरल का बेनिफिट दे रहा है, जियो रेफरल का बेनिफिट दे रहा है, अभी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां ये बेनिफिट देते हैं। थोड़े लोग ओपनली देते हैं, थोड़े लोग नीचे से बाहर से अलग से छिपा के देते हैं। तुम कस्टमर को लाओ, हम तुमको, होता है कि नहीं होता है? सब जगह है ये। तो ये रेफरल करना ये बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट। अब रेफरल का मतलब क्या है कि हमको किसी को बोलना है, बताना है। ये बिजनेस का नेचर, किराना शॉप का नेचर समझ लिए, ठीक है, होटल का नेचर समझ लिए, कपड़े का नेचर, कपड़े का दुकान का नेचर समझे कि नहीं समझे? इसका नेचर समझ में आ गया। इसमें हम रेफर करें, हम कोई दुकान नहीं लगा रहे, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हमको बोलना है। तो अगर ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो ये चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है रेफरेंस के लिए? अब सर कैसे बोले, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को डर लगता है, मेरे को शर्म आता है, मुझे अजीब लगता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो पहली बार करें तो सबको सब होता है, लेकिन सीखते जाएंगे, करते जाएंगे तो ये भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो नेचर समझ में आ गया, रेफरेंस का बिजनेस है। दूसरा इसका क्या है कि मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट को और वेस्टेज के मार्केट को या डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है कि कंज्यूमर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सब प्लान में दिखा है ना हम? ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर को जा रहा है प्रोडक्ट। ये समझ रहे हैं ना आप? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर को जाना है तो कौन बताएगा? वो उधर एडवर्टाइजमेंट बता रहा है तो उसको पैसा जा रहा है, इधर कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं, तो पैसा किसको आएगा? क्लियर हो गया? अभी फिर इस पर डाउट नहीं करना अभी, ठीक है? अब यही काम करना पड़ेगा ना। जितना भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट काम कर रहा है, उसके पीछे तेंदुलकर काम कर रहा है, उसके पीछे विराट कोहली काम कर रहा है, उसके पीछे महेश बाबू ऊपर से कूद रहा है सब पी के, ठीक है? तो वहाँ पे वो सारे लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे कौन काम करेगा? कौन करेगा? मैं करूँगा, हम नहीं। कौन करेगा? तैयार है? क्लियर हो गया ना? तो ये क्लैरिटी रख के जब काम करेंगे ना तो कोई अपलाइन डाउनलाइन से किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई शिकायत रहेगी क्या? ठीक है, कोई कंप्लेन कर सकता है? नहीं। तो ये क्लियर हो गया। अभी दूसरी बात हमको समझने का क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमको सीख के काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? विनिंग टीम सिस्टम है। कोई भी काम करने के लिए पहले डिग्री, अब डॉक्टर बन गए तो उसको पहले डॉक्टर को बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एडवोकेट है तो उसको पहले लॉ कॉलेज जाना पड़ेगा, तो तब जाके उसके पास लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब आपके पास क्या है कि लोग आएंगे? क्या डिग्री है? ठीक है, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो पहले क्रिकेटर था, वो पहले फिल्म स्टार था, तो वो अगर वो बोलेगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है तो भी ले लेंगे आप। लेकिन मैं बोलूँगा हमारे टूथपेस्ट में गैरोडर्मा है तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं कौन? मैं तो नॉर्मल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए तैयार है? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर हम सीखने के लिए तैयार है तो हमको सीखने का मतलब ही क्या है? हमको अपग्रेड करना है, कुछ हमारे अंदर स्किल्स लाना है। तो सबसे पहला स्किल अभी जो भार्गवी बोल रहे थे कि हमको खुद को पहले प्रोडक्ट यूज करना है। कितने लोग प्रोडक्ट घर में सारे यूज कर रहे हैं? 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है, बराबर है। आप दूसरा क्या बोले? शेयर द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट के बारे में हमको कुछ बताना है, ठीक है? तो ऐसे ही बता सकते हैं क्या? नहीं, कैसे बताएंगे? प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो लेते हैं, हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रोडक्ट के बारे में बताने का? डेमो। तो कितने लोग डेमो दिखा रहे हैं? अभी देखो आधे हाथ खड़े हो, ठीक है? तो डेमो दिखाना अगर हम सीख लेंगे ना तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। डेमो दिखाना सीख। अभी हमारे जो कंपनी के ओनर है गौतम वाली सर क्या बोल रहे बताए कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दो। एक है कि प्रोडक्ट खुद चल नहीं सकता और दूसरा प्रोडक्ट खुद अभी कौन चलेगा? कौन बोलेगा? क्या ये हो पा रहा है? अगर ये रोज हो रहा है ना तो रिजल्ट जरूर आएगा, ये बात पक्की है। तो हमको यही सीखना है, यही हमारे अंदर अपडेट लाना है कि मैं अच्छी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में डेमो कैसे दे दूँ और क्या बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ। तो डेमो दिखाने के लिए हमारे पास टूल्स है, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। हम CMD का डेमो दिखाते हैं तो कुछ उसमें यूज़ करते हैं, फ्लैक्स का डेमो दिखाते हैं तो उसमें थर्मोकॉल लेकर आते हैं। ये सारे हमारा एक पूरा टूल बैग, हमारा डेमो किट होना चाहिए। सबके पास है? किसके किसके पास है? अभी जिसके पास नहीं है वो अपना टूल बना दीजिए, ठीक है? अब अगर डेमो बन गया, किट तैयार है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों के सामने दिखाना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है? तो हमें अपने आप को अपग्रेड कहाँ करना है कि सबसे पहला जो काम हमको अपडेट में लाना है कि डेली हमारी कुछ काम की लिस्ट बननी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्ट बनना चाहिए, ठीक है? हमारे पास सिस्टम जो बोलता है कि 10 कोड स्टेप्स है, वो डेली बेसिस पे करते रहते हैं। हमारे पास पावर एक्शंस है, उसके बारे में हम बोलते रहते हैं, रोज उसके बारे में करना है। तो ये डेली बेसिस पे ये हमारे कामों की लिस्ट को हमको चेक करना है कि क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है जो हमको हमेशा अपडेट में रखना है, ठीक है? कोई ये बड़ा अपडेट का काम नहीं है, ये है कि हमारे लिस्ट को हमेशा तैयार रखें। अगर हमारे पास लिस्ट है तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, अगर लिस्ट नहीं है तो हमारा काम आगे बढ़ेगा क्या? ठीक है? आपके शॉप में कस्टमर आया तो सेल होगा, अगर कस्टमर नहीं आया तो सेल होता नहीं। आप बहुत बढ़िया होटल लगा दिए, बिरयानी तैयार है, गरम गरम स्मेल आ रही, लेकिन कस्टमर तो आना चाहिए ना। yes. तो वो बाहर का ट्रेडिशनल बिजनेस है। यहाँ पे क्या है कि हम कस्टमर को रेफर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ लोगों का पीपल लिस्ट होना चाहिए, और होना चाहिए नहीं, ये हमेशा इसमें ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है? अब ये ऐड कैसे करेंगे? हम जहाँ भी जाते हैं कुछ 2-3 लोगों से हम बात करते रहते हैं रोज। इसको हम बोलते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग या कोल्ड कॉन्टैक्टिंग, ठीक है? नए पुराने दोस्त तो हमारे हैं, रिश्तेदार भी है, फ्रेंड्स भी है, ऑफिस वाले भी है, अड़ोस पड़ोस भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। तो जहाँ हम जाते वहाँ पे हमारे सामने कौन दिखते? लोग ही दिखते ना। yes. कौन दिखते हैं हमको? लोग। तो लोगों का लिस्ट हमारे पास चलते रहना चाहिए। जब तक ये पेट्रोल डलते रहेगा गाड़ी चलते रहेगी। अब आज हमें अपने आप को ये चेक करना है कि क्या ये लिस्ट आज का मेरा तैयार है ना? देख रहा लिस्ट उन्ना हिमाला है क्या तैयार? नहीं है तो फिर उसको क्या करेंगे? कैसे हम लिस्ट को बनाएंगे? ठीक है? तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैं जैसे अभी बोल रहा था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोगों से कुछ ना कुछ हेलो हाय नमस्ते, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, कुछ ना कुछ बातचीत करें, ठीक है? अगर हम बात करेंगे तो वो भी पूछेगा कि मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा नाम शरण सिंह है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आप क्या करते हैं,
फिर वो भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes. फिर मैं बोलूँगा कि मैं मेरे जॉब के साथ में एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे हमको हेल्थ मिल सकती है, जहाँ पे हम टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पे हम अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो क्या आपको हेल्थ चाहिए? क्या आपको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए? क्या आपको एक अच्छा इनकम चाहिए? तो ये मेरा फ़ोन नंबर, ये मेरा कार्ड है, तो क्या आप अपना कार्ड दे सकते हो? इतना हम पूछ सकते हैं। अगर ये पूछना हम नहीं सीख रहे, इसका मतलब अभी भी हम पुरानी साइकिल पे घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस तो अपग्रेड किसको करना है? हेलो, मुझे देखो हमारे पास कोई अभी महेश बाबू तो नहीं आएगा, हमारे पास अमिताभ बच्चन आके ऐसा नहीं बोलेगा वेस्टीज अच्छा है कर लो, ऐसा तो नहीं बोलने वाला है। तो कौन बोलेंगे? किसको बोलना है? तो हमारा सेलिब्रिटी कौन है? ओके, आप बोलते रहो, एक दिन आप भी ये ड्यू सीरीज के जैसे सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो आज हमको अपडेट कहाँ करना है कि हमारी लिस्ट रोज बननी चाहिए और वो ऐड होनी चाहिए। एक तो ऐड होना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया का भी हम फायदा ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर हम कुछ प्रोडक्ट का कुछ हम टेस्टिमोनी लगाएंगे, कुछ फोटो लगाएंगे, या आज के मीटिंग का अगर हम फोटो लगाएंगे, कोई तो देख रहा है ना, हमारा स्टेटस देखने के लिए होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस छिपाने के लिए होता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो सोशल मीडिया को हमें यूज करना है। सोशल मीडिया से भी कोई ना कोई हमारे साथ कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप YouTube पे इसके वीडियो लगाकर वहाँ से किसी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सारे तरीकों के यूज़ करने वाले हमारे लीडर्स हैं। ठीक है, एक ही तरीका काम करता है ऐसा नहीं है। सबसे पहला हम शुरू कर दें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। वो करेंगे नहीं मालूम, लेकिन बताने की प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। Yes. तो अभी आप सबके दोस्त रिश्तेदार खत्म हो गए? अच्छा, कितने लोगों की पूरी लिस्ट खत्म हो गई? कोई भी नहीं हाथ उठा, इसका मतलब लिस्ट है सब? Yes. है कि नहीं? थोड़ी तो है ना। లిస్ట్ చాలా ఉన్నది కానీ నేను చెప్పడానికి వెళ్ళట్లేదు। రైట్, तो देखिए रॉ मटेरियल तो तैयार है। ठीक है, तो अभी हमको दूसरा अपडेट क्या करना है कि लिस्ट तो बन गया है, अब उनको कांटेक्ट एंड इनवाइट करना सीखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है तो आप बहुत खुशी खुशी जाते हैं, ये कार्ड है, आपको जरूर शादी में आना है, आपको आना पड़ेगा बोल के आते कि नहीं आते? Yes. अच्छा, वो बोलते समय कितने लोगों को परेशानी दिखता है? मोह माटा होते ना, शर्म आती है, हिचकिचाहट, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना, नहीं। इसको भी नहीं होता। ठीक है, अच्छे से जाते कि नहीं जाते? अच्छा, वो ऐसे ही जाते, अभी रोड पे जा रहा था, ये घर देख गया, चल इनको कार्ड दे देंगे, ऐसा रहता? नहीं। क्या करते पहले पहले लिस्ट बना लेते, चलो ये मामा है, ये मौसा जी है, ये ससुर जी है, ये दोस्त है, ये ऑफिस वाला है, ये क्लासमेट, करते कि नहीं करते? Yes. तो लिस्ट बना के 1 बाय 1 उनके घर जाते हैं, उनको हम इनवाइट करते। अब यहाँ पे भी हम लिस्ट बनाने के बाद उनको 1 बाय 1 कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी में 500 लोग आ रहे हैं, मतलब आपने 500 लोगों को इनवाइट किया। ठीक है, आपकी बेटी की शादी में अगर 500 लोग आए तो ऐसे जा रहा था, एकदम दिख गया, अरे फंक्शन वाले अंदर आ गया, ऐसा होता क्या? नहीं होगा ना। तो ये बिजनेस में भी अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहिए, आपका टीम बड़ा होना चाहिए, आपका इनकम 1 लाख 2 लाख बनना चाहिए, तो ये काम को हमें सीखना पड़ेगा, इसमें मास्टरी लानी पड़ेगी। जैसा अगर हम पहली बार साइकिल चलाएंगे, पहली बार बाइक चलाएंगे, पहली बार कार चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, गिर सकते कि नहीं सकते? साइकिल चलाते चलाते मेरे को तो बचपन में बहुत मार लगी,
टू व्हीलर पे भी मार लगी थी। होता कि नहीं होता? कार चलाते समय भी थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग करते समय भी प्रॉब्लम आएगा। आपको क्या बोलना डर लगेगा, या वो सामने वाला कुछ ऐसा सवाल पूछ लेगा तो आपको लगेगा पूरा शॉक लग गया, धड़ 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 अंदर। होता है कि नहीं होता? कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसे ही होता, ठीक है। लेकिन इसको रोज हमको करते जाना है। अगर ये हमारी रोज की हैबिट बन रही है ना, तो आप मान के चलो कि अभी जो कंपनी जो 300 PV का जो ऑफर दे रही है, मैचिंग का ऑफर दे रही है, और जो हमारे लीडर्स 300 PV क्लब के बारे में हमको सिखा रहे हैं कि 6 रॉयल कस्टमर अगर हम बना लेंगे, एवरी मंथ हमारा 300 PV कर लेंगे। कितने लोगों को 300 PV के बारे में पता है? 300 PV, ओके, पता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। अच्छा, महीने का 10 से 12 हज़ार का बिजनेस करना सीखना है। इसका मतलब ये, कितना बिजनेस सीखना है? 10 నుంచి 12,000 बिजनेस మనము నేర్చుకోవాలి। बहुत बड़ा काम लग रहा है, इसको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। तो बाहर ये मार्केट के बाहर है ना, इतने बुट्टी में थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू लेके बैठे सब लोग, उनका टर्नओवर पूछ लो, उनका एक दिन का 10,000 का हो सकता है, फिर भी वो रोड पे बैठे ना। तो उससे भी हमको बहुत थोड़ा काम करना है, ठीक है। तो काम ये कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग से ही वो पूरा होने वाला है। तो अगर ये काम हमको मुश्किल लग रहा है तो हमको अपलाइन से सीखना पड़ेगा, हमको मॉर्निंग जूम में सीखना पड़ेगा। हमारे पास एक बुक है, रोड मैप टू सक्सेस बुक है। कितने लोग वो बुक हाथ में लेकर पढ़े? ఎంత మంది రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ బుక్ చేతిలో పట్టుకొని చదువుకున్నారు, చదివినారు? देखो, अच्छा, आप ध्यान में रखिए कि जितने भी लोग यहाँ पे सूट बूट पहने सो है ना, ठीक है, वो लोग यही करके आगे बढ़ के यहाँ पे अचीवर बन के आए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे श्रीनिवास जी है, सुरेश जी है, कुलकर्णी सर है, पीछे हो। अगर हम कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग नहीं करेंगे तो क्या यहाँ पे 20,000 कमा सकते? अगर हम ये रोज नहीं करेंगे लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग, तो क्या हमारी कार आ सकती? ये इनके जैसा आप 5 कंट्री घूम के आ सकते क्या? अच्छा, किसको लगता है कि 5 कंट्री घूमना ही चाहिए? 5 कंट्री घूमने का शौक किसको है? अंदर की उन्नति కదా? अरे उत्साह में चिपटता ले रहे हो। 5 देशों में घूमने जाने का शौक किसको है? अच्छा लगेगा। तो सबसे आसान रास्ता क्या है? इसको थोड़ा जल्दी सीख लो, इसको थोड़ा सा क्या करना है, जल्दी जल्दी सीख लेना है। अब देखिए, हमारे पास है ना 2-3 तरीके से हम लोगों को कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग कर सकते हैं। अगर हमारा फ्रेंड है, हमारा रिश्तेदार है, तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, भाई क्या हाल है, कैसे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, बोल के अभी मैं एक काम में जुड़ा हुआ हूँ, आपको भी मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हमारे एक सीनियर सर है, मैं आप लेके आऊँगा, या वो हमको मलकपेट स्टोर में मिलेंगे। आप मलकपेट पे आ जाओ, यहाँ पे सीधा बुला लिया, यहाँ पे दिखा दिया, स्टार्ट कर दिया। एक बात बोल सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, ठीक है, अपन दोनों मिलके करेंगे, कोई इसमें नुकसान की बात नहीं, लॉस का कोई टेंशन नहीं। నేను ఉన్నా కదా, నేను కూడా చేస్తున్నా కదా, నువ్వు కూడా చేస్తున్నా కదా। अगर हमारा फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तो इतना तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? वो करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दो बात, ठीक है। अब दूसरा जो है कि हम नए नए लोगों से जब बात करते हैं तो हम 2-3 तरीके से अप्रोच करते हैं। सबसे पहला है कि हम हेल्थ से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कितनों को लगता है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है? लगता है ना? मेरे को याद है, मैं कुलकर्णी सर को बिजनेस के बारे में बहुत समझा रहा था, वो समझना नहीं चाह रहे, लेकिन एक हेल्थ कैल्शियम के लिए सुनने के लिए तैयार हुए, वही था मम्मी के लिए। तो बिजनेस के सब बिजनेस ठीक है, लेकिन जब हेल्थ की बात आई, मम्मी का हेल्थ था, तो कैल्शियम और ग्लूकोजोमाइन जो था वो लेने के लिए तैयार हो। फिर मैं पूछा आईडी बना दूँ, आपका नंबर पे स्टार्ट करें? वो बोले नहीं 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 नहीं, आपके नंबर से खरीद के दे दूँगा। फिर 2 दिन मैंने यूज़ किया, अच्छा लगा, आपके आईडी बना ले, तो आईडी बन गई। तो होगा कि नहीं होगा? तो हेल्थ से हम किसी को भी
इनवाइट कर सकते